Am I audible for all of you? Shall we start the lecture? Please give reply in chat box. Am I audible clearly for all of you? Okay. So we'll start now. Good evening, students, all of you. In previous lecture, we will take information about the lesson number 7. So today we are going to continue that same topic, same lesson over here. The lesson name is Non-Cooperation Movement. And in this lesson, we learned about that role of Gandhiji in South Africa, also Gandhiji rise in India, philosophy of Satyagraha, then types of Satyagraha, different happened there, that Champaran, Kheda Satyagraha. Also, we learned about the Satyagraha which happened against Rowlatt Act or Rowlatt Act, and workers' movement also we learned in Ahmedabad. So today we have to continue with this lesson with that next point, with that next subtopics, that is Khilafat movement, non-cooperation movement, progress of non-cooperation movement. We have to discuss this particular point. Also, Swaraj Party, Simon Commission, Nehru Report, and demand for Purna Swaraj. This particular चैतन्य सर points we तुमचं have बुक to. दिसत नाहीये. Yes, ma'am. सर बुक दिसत नाहीये तुमचं, ब्लँक पेज दिसतंय. चेक करा जरा. Is it visible now? Can you see book properly, everyone? येस सर, इट इज विजिबल. आता तुम्ही जे पेज शिकवताय त्या पेजवर या आणि कंटिन्यू करा. Yes, ma'am. Okay.
So students, already we took information about this Jallianwala Bagh massacre, which happened in that Amritsar, Punjab, in that particular meeting. How that firing happened with the order of General Dyer, the General O'Dwyer, British officer. After this Khilafat movement point, we have to take information today, and also remaining all points we have to learn today. So, what is the meaning of Khilafat movement? That we should understand firstly. Khilafat movement means what? That meaning we have to note down. You have to note down in your notebook. Not notes writing. You can write definitions over there. So, Khilafat movement. Muslims all over the world regarded the ruler of Turkey. Turkey means in Marathi तुर्कस्तान. हिंदी में हम कह सकते हैं कि तुर्कस्तान का जो रूलर होता है, तुर्कस्तान का जो सत्ताधारी व्यक्ती होता है, उसको मुस्लिम लोग क्या मानते थे? रिलीजियस लीडर मानते थे, मतलब धार्मिक गुरु मानते थे. म्हणजे धार्मिक गुरु मानायचे ते जे तुर्कस्तानचे सत्ताधारी असायचे त्यांना धार्मिक गुरु म्हणायचे. मीन्स इन मराठी also I will tell because some students are means in Marathi also this they are learning this subject in Marathi also, that's why and in Hindi also I will explain, no problem. So religious leader means what student? Religious leader म्हणजे काय? मराठीमध्ये त्याला धार्मिक गुरु, तर आपण नेता म्हणू शकतो. लीडर म्हणजे नेता पण म्हणू शकतो. आणि इन हिंदी वी कॅन से दॅट धार्मिक ओनली वी कॅन से इन हिंदी ऑल्सो, धार्मिक नेता. During the First World War, Turkey fought against the British. To get the support of the Indian Muslims in war, the British had assured that after the end of the war, Khalifa's empire will not be harmed. But after the end of the First World War, England did not stick to its assurance. See student, this point is so much important point. Means you can understand here. When this people got support by Muslims in that particular war, means that time they gave one assurance, assurance they gave. British had assured that after that end of this war, Khalifa's empire will not be harmed, means we will not give any trouble to you. बट आफ्टर दैट एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब क्या हो गया इधर, ब्रिटिश लोगों ने मुस्लिम का जो सहाय है वो मिलने के लिए उनको ऐसा आश्वासन दिया कि हम लोग आपको कौन सी भी मतलब कौन सी भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे. तो ये जो उन्होंने आह्वान किया था, सॉरी आश्वासन दिया था. आश्वासन कब दिया था? जब वो मदद माग रहे थे मुस्लिम लोगों की. मुस्लिम लोगों ने मदद भी की, म्हणजे मुस्लिमांची मदत घेतली त्या काळामध्ये, आणि तेव्हा त्यांना ऍश्युरन्स दिला की काही नाही बाबा, आम्ही तुम्हाला मदत करणार, आम्ही तुम्हाला कोणताही त्रास देणार नाही, तुम्ही आम्हाला युद्धामध्ये मदत करा, मीन्स आप हमें युद्ध में सहाय्य करो, हम आपको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे. मगर जब युद्ध खत्म हो गया, पहला महायुद्ध जब खत्म हो गया, इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक टू इट्स एश्योरेंस. मतलब इंग्लैंड ने क्या किया, उनका जो कहना था, उनका जो आश्वासन था, वो उन्होंने पालन नहीं किया. मतलब वो उसके अगेंस्ट बर्ताव कर रहे थे. और टाइड ऑफ ग्रेट डिस्कंटेंट, सो क्या होगा उधर, मतलब क्या हो गया होगा, वो जो मुस्लिम लोग हैं उनके मन में ऐसी असंतुष्टता, म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये एक डिस्कंटेंट म्हणजे आनंद नाही तर दुःख निर्माण झालं किंवा असंतोष निर्माण झाला. So a tide of great discontent arose among the Muslims. The movement started by Indian Muslims and जो मूवमेंट चालू हो गई, जो आंदोलन चालू हुआ मुस्लिम लोगों का, इंडियन मुस्लिम लोगों का, खलीफा को सपोर्ट दिया, और इस आंदोलन का नाम क्या हो गया, तो इस आंदोलन का क्या कहते हैं, दैट इज द खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट जो चल रही थी वो इंडियन मुस्लिम लोगों ने चालू की थी, और वो जो मूवमेंट थी वो खलीफा को सपोर्ट देने वाली मूवमेंट थी. गांधी जी थॉट दैट ऑन दिस प्रॉब्लम इफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स कम टुगेदर, गांधी जी का विचार था अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो अगर हम हिंदू एंड मुस्लिम एक हो गए, हिंदू और मुस्लिम अगर एक संध रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए, जो इंडिपेंडेंस चाहिए वो मिलेगा. तो इफ वी कम टुगेदर and start the national movement, then the government can surely be brought to its senses, and गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, गवर्नमेंट को भी मालूम पडेगा की हमारी कैसी आहे, हमारी युनिटी कैसी आहे. मतलब मराठीमध्ये जर आपण सांगायचं झालं तर गांधीजींनी काय विचार केला की अशा काळामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम जर एकत्र आले
तर त्या ठिकाणी सरकारचं डोकं जे आहे ते ठिकाणावर येईल आणि सरकार सुद्धा त्या ठिकाणी काय होणार आहे, त्यांना सुद्धा लक्षात येणार आहे काय की हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये कशी एकी आहे हे त्यांच्या लक्षात येणार आहे. देयरफॉर गांधी जी सपोर्टेड दिस मूवमेंट, दैट इज द खिलाफत मूवमेंट, एंड इसलिए हम जिन्हें कह सकते हैं, इसलिए गांधी ने क्या किया, सपोर्ट दिया। किसको सपोर्ट दिया, इस मूवमेंट को, इस खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने क्या दिया, सपोर्ट दिया। द खिलाफत कमिटी एक्सेप्ट दैट गांधी प्रपोजल ऑफ द फॉलोइंग द नॉन कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। गांधी जी का जो तत्व था, क्या तत्व था, असहकार, नॉन कोऑपरेशन, मतलब सहकार्य नहीं करना ब्रिटिश लोगों को। तो ये तत्व दिस कमिटी एक्सेप्टेड, म्हणजे खिलाफत कमिटीने ते एक्सेप्ट केलं, खिलाफत कमिटीने स्वीकार कर दिया। कौन सा तत्व, नॉन कोऑपरेशन का तत्व, असहकार का तत्व। हिंदू मुस्लिम यूनिटी और सीन स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड रियली हम ऐसा कह सकते हैं कि इस मतलब इस काल में हिंदू और मुस्लिम क्या हो गए, एक हो गए। मतलब मराठीमध्ये आपण जर म्हणू शकतो की एकत्र झाले किंवा ब्रिटिशांच्या विरुद्ध एकत्र आले। that is the very important thing here we can say. So after this what happened, non-cooperation movement, this particular concept we have to learn here, because which lesson we are learning, that lesson name is non-cooperation movement. So what is the meaning of non-cooperation movement, I told you now also, म्हणजे मी थोडक्यात सांगितलं आता, हम मैंने अभी अभी बताया कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या, सहकार नहीं करने का, असहकार मतलब कि किसको सहकार नहीं करने, किसको सहकार्य नहीं करने का, किसको हेल्प नहीं करने की, किसको मदद नहीं करने की, तो ब्रिटिशों को मदद नहीं करने की, ऐसा जो तत्व था उसको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कह सकते हैं। ये मैंने मतलब सीधी भाषा में, सीधी लैंग्वेज में बताया। अब टेक्सचुअल में क्या दिया है वो हम देखेंगे। उससे पहले मैं चैट बॉक्स भी चेक करूंगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप टाइप कर सकते हो। ओके सर, वॉइस विल दो, ओके। नाउ इज इट क्लियर, हेलो, नाउ इज इट क्लियर। हाँ, some students are asking for marks. Students, I have sent that marks already to a ma'am. Okay. हाँ, now is it clear? My voice is clear now. Okay. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम बातें करेंगे अब। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होती है और वो कैसे हो गई। यस, ओके। The concept behind the non-cooperation movement, all that the British government in India is dependent only on the cooperation of the Indians। मतलब इस हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसा काम कर सकता है, ब्रिटिश सरकार कैसे काम कर सकता है, अगर इंडियन लोगों ने उन्हें सपोर्ट दिया, उन्हें मदद की, मतलब ब्रिटिश लोग जो है वो इंडियंस पर ही निर्भर आहे। मतलब मराठीमध्ये सांगायचं झालं, भारतीयांच्या सपोर्टवरच ते त्या ठिकाणी काम करू शकतात, भारतामध्ये राहू शकतात, डिपेंडेंट आहे, ते अवलंबून आहेत, मतलब वो निर्भर है भारतीय लोगों के सपोर्ट पर, आधार पर। तो क्या करना चाहिए, भारतीय लोगों ने क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट ही नहीं करने का। इफ द इंडियंस adopted complete non cooperation then the British government will completely collapse। क्या हो जाएगा, अगर हमने उनको मदद ही नहीं की, अगर हमने उनको सहकार्य ही नहीं किया, किन लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश लोगों को, तो क्या हो जाएगा, उनका जो सरकार है, उनका जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसा जो थॉट था, ऐसा जो विचार था, इस विचार को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहकार आंदोलन मराठी में, हिंदी में बोल सकते हैं। विद दिस इंटेंशन, इस इच्छा से, इस इंटेंशन, मीनिंग ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन का मराठी में अर्थ होता है तीव्र इच्छा, हिंदी में भी हम बोल सकते हैं दैट इज द इच्छा ओनली, इन इंग्लिश वी कैन से स्ट्रॉन्ग डिजायर। So with this intention, he evoked the people. Gandhiji actually supporting this particular movement. Gandhiji was supporting this movement. So here
If the Indians adopted this movement, then really the government will collapse. With this intention, he evoked the people of India to take part in this movement. And really, in the year of 1920, very important year, students, please note down this event in your notes. 1920 year. In 1920 year, what happened? National Congress, that is the Indian National Congress session, was held at the place Nagpur. And in this particular session, that one declaration happened, वन रिजोल्यूशन है अपन 1920 साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हो गया। वो अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। इस नागपुर के अधिवेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया गया, एक जाहिरनामा निकाल दिया। कौन सा जाहिरनामा था वो? ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो जाहिरनामा था असहकार आंदोलन का। पुट फोर्थ बाय चित्तरंजन दास was accepted. All regions of the movement were given in the hands of Mahatma Gandhi, and according to this resolution, इस जाहिरनामा के अनुसार a program was framed to boycott government offices। क्या क्या करने का? इस प्रोग्राम के अनुसार क्या क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफिस जो थे, जो सरकारी कार्यालय थे, जो कोर्ट थे, जो फॉरेन गुड्स था, फॉरेन जो कुछ सामान था, गुड्स था, गवर्नमेंट स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उन पर बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना। बहिष्कार मतलब क्या? उनका कोई भी मतलब स्कूल में, उनके स्कूल में नहीं जाने का, उनकी जो चीजें हैं, जो कोई चीजें हैं, फॉरेन चीजें हैं, फॉरेन गुड्स है, वो नहीं खरीदना। तो ऐसी जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस की थी, वो हमारे लोगों के लिए थी। मतलब हम ऐसा नॉन कोऑपरेशन अगर करेंगे, मतलब कोऑपरेशन नहीं करेंगे ब्रिटिश लोगों को, तो क्या होगा? उनके उनमें बदल हो जाएगा। उनमें जो बदलाव आएगा वो कैसा बदलाव आएगा? अगर उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिला तो वो काम ही नहीं कर सकेंगे इधर, और ऐसे ही जाएंगे। तो ऐसा एक थॉट था, ऐसा एक विचार था। प्रोग्रेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसी थी प्रोग्रेस, कैसी थी प्रगति? प्रगति कैसी हो गई? दिस मूवमेंट मीन्स ऑल प्रोग्रेस सो मच ऑन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैनी इमिनेंट लॉयर्स, इमिनेंट मतलब फेमस, बहुत सारे फेमस लॉयर्स थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, बहुत प्रसिद्ध ऐसे ऐसे लॉयर थे, चित्तरंजन दास थे। ये जो लॉयर लोग थे, ये जो वकील लोग थे, ये जो एडवोकेट लोग थे, boycotted court by giving up their practice because court is government court, no। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जॉब ही छोड़ दिया, और कोर्ट में का प्रैक्टिस ही छोड़ दी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिस था। बॉयकॉट करना है तो सब बॉयकॉट करना है, तो हम भी जॉब पर नहीं जाएंगे, हम भी काम पर नहीं जाएंगे। ऐसा एक विचार था इस लोगों के मन में। ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बच्चे भी मतलब स्कूल में नहीं जा रहे थे। अभी हम कोरोना की वजह से नहीं जा रहे, मतलब ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है। मगर उस समय जो इतिहास काल में जो हुआ था, वो जो था, वो गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट कॉलेज था। तो कौन सा गवर्नमेंट था? वो हमारा गवर्नमेंट नहीं था, वो ब्रिटिश वालों का गवर्नमेंट था, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। और इसलिए उस पर बॉयकॉट, ऐसा जो मतलब बहिष्कार जो डाला गया, वो हमारे लोगों के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने जो प्रयत्न किया था, प्रयास किया था। द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज रन। तो कौन एजुकेशन तो लेना है, मगर किसका लेना है? ब्रिटिशों का नहीं, तो किसका लेना है? हमारे देश का नेशनल एजुकेशन लेना है। मेनी नेशनल स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वेर established for our students, means our students can learn, our students can take education, but in our school, not in British school। there was boycott, मतलब क्या? हमारे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, ब्रिटिशों के स्कूल में क्यों पढ़ेंगे? देर वॉज बॉयकॉट ऑफ कमिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन होने वाले थे उन उस पर भी बहिष्कार डाला गया। बॉयकॉट एंड बोनफायर फॉरेन क्लोथ, बोनफायर मतलब जला जला दिया गया जो कपड़े थे, जो कुछ क्लोथ थे, मतलब ब्रिटिश लोगों की जो फैक्ट्री से जो कपड़ों का कपड़ा था, वो कपड़ा जला दिया गया, बोन फायर कर दिया। ड्यू टू दिस द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ डिक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, मतलब क्या हो गया? मतलब इसका नतीजा क्या हो गया कि फॉरेन क्लोथ जो आ रहा था इधर, उसका थोड़ा सा डिडक्शन हो गया, मतलब उसकी जो आने की, मतलब हम जो ले रहे थे, वो अब नहीं मतलब लोग नहीं स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि बॉयकॉट था इधर। इन द ईयर ऑफ 1920, 1921 में, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ
that well, he was welcomed by organizing हड़ताल. अब जो प्रिंस आया था, जो राजपुत्र आया था, तो ब्रिटिश था ना वो, तो इसलिए क्या किया गया, हड़ताल किया गया. हमारे भारत देश में हमने उसका स्वागत कैसे किया, हड़ताल करके किया. हड़ताल मतलब क्या करने का, हड़ताल मतलब जो बोलते हैं, हड़ताल मतलब नॉट ईटिंग एनीथिंग, दैट इज द लाइक फास्ट, मीन्स हम उपोषण ऐसा भी बोल सकते हैं हम. लोनली रोड, रास्तों में जो रास्ते जो थे वो लोनली थे. मीन्स वी कैन से हियर इन हिंदी, जो शॉप्स थी, जो दुकान और कुछ ऐसी कार्यालय और सब कुछ ऑफिस जो होते वो बंद किए गए थे. रास्ते भी बंद हो गए थे, क्लोज शॉप्स. एंड दैट प्रिंस वेलकम फंक्शन, दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन एक्चुअली. Means our people did this non-cooperation. It was not cooperation. The movement spread from the planters in Assam. आसाम में आपको पता है कि आसाम में क्या होते हैं, चाय के जो मतलब उत्पादन होता है, चाय का जो प्रोडक्शन होता है, उधर के प्लांटर्स ने भी क्या किया, उन्होंने भी मूवमेंट में सहभागी शामिल हो गए. द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम द प्लांटर्स इन आसाम टू रेल वर्कर्स इन बंगाल. मतलब आसाम के जो प्लांट वर्कर्स थे, जो खेत में काम कर रहे थे, उनसे लेकर रेलवे में काम करने वाले बंगाल के वर्कर ने भी इस मूवमेंट में भाग लिया था. टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर कंट्रोल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक सप्रेसिव मेजर्स. नाउ ब्रिटिश थॉट हियर, ब्रिटिश लोगों ने विचार किया, ये तो लोग अभी मूवमेंट तो ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, अब इस मूवमेंट को दबाना चाहिए. तो कैसा दबाना चाहिए, सप्रेसिव मेजर कुछ ऐसे लाने पड़ेंगे. सप्रेसिव मतलब प्रेस करने वाले, मतलब त्रस्त करने वाले लोगों को. ऐसे कुछ नियम, मेजर्स मतलब नियम, रूल्स, कायदे कानून उन्होंने लाने का चालू किया. इन फेब्रुवरी 92, 1922 में पुलिस ने क्या किया देखो. अभी गांधी जी ने तो बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, हमें नॉन कोऑपरेशन तो करना है, मगर कोई भी मतलब वायोलेंस नहीं करने का, मतलब फाइटिंग वगैरह नहीं करने का. नॉन वायोलेंस मतलब नॉन वायोलेंस ही, नॉन कोऑपरेशन ठीक है. इधर क्या हो गया, 1922 में पुलिस ओपन फायर ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडियंस. मतलब एक ग्रुप चल रहा था, प्रोसेशन चल रही थी. प्रोसेशन मतलब ग्रुप होता है. ये ग्रुप में लोग चल रहे थे, किधर, चौरी चौरा में. अभी चौरी चौरा का है, ये चौरी चौरा है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में. एंड ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का है, हे उत्तर प्रदेश में. म्हणजे उत्तर प्रदेशामधलं गोरखपूर जिल्हा जो होता, त्या गोरखपूर जिल्ह्यामध्ये जे चौरी चौरा नावाचं गाव जे होतं, तिथं जी आपली लोक एका गटामध्ये चाललेली होती, त्या गटावरती गोळीबार करण्याचं काम ब्रिटिश पोलिसांनी केलेलं होतं. द पीपल वेर अँग्री अँड सॉरी द पीपल वेर अँग्री अँड सेट फायर टू द पोलीस स्टेशन. ऍक्च्युली काय झालेलं आहे, सुरुवातीला आपले लोक सुद्धा त्या ठिकाणी, म्हणजे जे चाललेले होते ते प्रोसेशन कसे चाललेले होते, शांत पद्धतीने चाललेले होते. परंतु जेव्हा मीन्स जिस समय टिट फॉर टैट ऐसा हम बोलेंगे इधर, द पीपल वेर एंग्री फायर टू द पुलिस स्टेशन, बिकॉज यार पुलिस ओपन फायर फर्स्टली, पुलिस ने पहले फायर किया हमारे लोगों पर, तो हमारे लोग कैसे शांत बैठेंगे. मतलब वो इधर एंग्री हो गए, बहुत संतप्त हो गए, और उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही फायरिंग किया. इन विच अलॉन्ग विथ वन ऑफिसर 22 पुलिसमैन वेर किल्ड. मतलब 22 पुलिसमैन किल हो गए, मार दिए गए, और एक ऑफिसर भी डायड हो गया. ड्यू टू दिस इंसिडेंट गांधी जी वॉज हर्ट. गांधी जी को बहुत ऐसा दुख हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था नॉन वायलेंस, और ऐसा लोगों ने क्या बर्ताव किया, हमारे लोगों ने उस पुलिस स्टेशन पर फायरिंग किया. ये जब जाने गांधी जी को लगा ना, वो गांधी जी बहुत नाराज हो गए. मगर मैं अभी बोला टिट फॉर टैट ऐसा इधर बर्ताव किया था. ऑन 12 फरवरी 1922 गांधी जी सस्पेंडेड दिस मूवमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट गांधी जी ने वो मूवमेंट ही मतलब कैंसिल की. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो स्टॉप की, इधर ही सस्पेंड की, मतलब स्टॉप की. तो देखो स्टूडेंट, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट के कारण. डू यू नो इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स, आपको पता है क्या, इस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या दिया है. ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द फार्मर्स ऑफ मुल्शी तालुका, यू नो दैट यू आर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो मुल्शी तालुका है, उसमें जो फार्मर्स लोग हैं, पुणे डिस्ट्रिक्ट लॉन्च दैट सत्याग्रह अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट. सेनापति पांडुरंग महादेव बापट लेड दिस मुल्शी सत्याग्रह. प्लीज रिमेंबर दिस नेम, अंडरलाइन दिस नेम, लीडर नेम, फॉर विच he was punished for 6 years of imprisonment. But म्हणजे मीन्स उन्होंने जो लीडरशिप ली इस मूवमेंट की,
इसलिए उन्हें क्या किया, अरेस्ट किया, इसलिए उनको अटक हो गया, ब्रिटिशों ने किया। क्या नाम था उनका, सेनापति पांडुरंग महादेव बापट, सेना बापट भी हम बोल सकते हैं शॉर्ट में। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922। 1922 में क्या हो गया, 1922 में गांधी जी, महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया फॉर राइटिंग दिस एंटी नेशनल आर्टिकल्स इन यंग इंडिया। क्योंकि उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे थे वो एंटी नेशनल थे। एंटी नेशनल बोले तो अपोजिट टू नेशन, अपोजिट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज एंटी नेशनल। मतलब ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में कोई लिखा होगा तो उसको एंटी नेशनल बोलेंगे, और इसलिए उनको अरेस्ट हो गई। Special court was set up at Ahmedabad and Gandhiji was sentenced at 6 year imprisonment. See, 6 years, Bapat also got punishment, six punishment. Gandhiji also got. Later, on the grounds of ill health, Gandhiji was released. मगर आफ्टर कुछ मतलब कुछ दिन बाद गांधी जी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण उनको छोड़ दिया गया। गांधी जी along with non-conformist movement took up constructive programs which mainly now गांधी जी know that, गांधी जी को पता था कि पहले हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो की, अब क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा विचार किया, और इस विचार के दौरान उनके मन में जो आया कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट का क्या फेलियर है, क्यों फेलियर आया, उसका उन्होंने बहुत सारा विचार किया। इधर हम देखेंगे, इंक्लूडेड दैट स्प्रेड ऑफ स्वदेशी। मतलब क्या हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो प्रोग्राम था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मुख्य कार्यक्रम था, उसमें कौन से पॉइंट प्रमुख थे, तो उस पॉइंट्स पर हमें काम करना है अभी, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। जैसे कि स्वदेशी था, हमें सिर्फ हमारी ही चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, हमारे लोगों ने सिर्फ हमारी ही चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, ब्रिटिश लोगों की और फॉरेन कंट्रीज की नहीं। हिंदू मुस्लिम हमें क्या रहना चाहिए, एक संघ रहना चाहिए, यूनिटी चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, हमारे लोगों को मतलब ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब हमें एक संघ रहना है, कुछ भी भेदभाव नहीं करना है। ऐसा जो थॉट था वो हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का थॉट, कुछ विचार थे उसमें, वो भी महत्वपूर्ण थे। क्योंकि अगर नॉन कॉपरेशन करना है ब्रिटिशों को, तो हमें पहले एक संघ रहना जरूरी है। अगर हम एक संघ रहेंगे तो ही नॉन कॉपरेशन हो सकता है। पॉपुलराइज यूज ऑफ खादी, खादी मतलब जो गांधी जी सिर्फ देखो धोती और पंचा ऐसा पहनते थे, और वो चरखी पर जो बनाते थे, मतलब हमारा वस्त्र हमें हमें ही तैयार करना चाहिए, ऐसा भी कुछ थॉट था। और खादी का भी महत्व फैलाना था। खादी का महत्व मतलब, खादी मतलब क्या होता है, तो खादी मतलब वो क्लोथिंग होता है जो कि अभी सी इन पॉलिटिक्स ऑल्सो सम दैट ड्रेसेस आर देयर, दैट इज अ खादी मीन्स मेनली व्हाइट कलर इज देयर। नेशनल एजुकेशन, मतलब हमारे राष्ट्रीय एजुकेशन लेना जरूरी है, ना कि ब्रिटिश एजुकेशन। ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रेंसिव। कॉम्प्रेंसिव बोले तो स्प्रेडिंग मीन्स here and there, spreading all over, we can say, in rural areas. So in which area that became comprehensive or spreading in that village area, in rural areas. Now student, you can see here is one picture. In this picture you can see there is flag in hand, and that flags are there. On that flags written something, Simon go back। मराठी में हम कहेंगे साइमन परत जा, हिंदी में हम कह सकते हैं साइमन मतलब वापस जाओ, वापस जाओ। अब स्वराज पार्टी मतलब क्या होता है, स्वराज पार्टी कैसी थी, स्वराज पार्टी ने काम कैसा किया, इस पार्टी में कौन से मेंबर थे, क्या हो गया, इसके पहले मैं कुछ आपकी समस्याएं अगर होगी तो चेक करता हूँ। सर योर वॉइस इज वेरी गुड। ओके, हेलो, नाउ इज इट क्लियर, नाउ इज इट क्लियर, hello, now is it clear, am I audible for all of you clearly? Okay, so in between some means now, okay, yes sir, yes, okay. So स्वराज पार्टी क्या मतलब
स्वराज पार्टी मतलब क्या? द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू put up that idea of contesting the elections and obstructing the work of the British government. Obstructing बोले तो मेकिंग रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, मतलब ब्रिटिश लोगों का जो काम है वो डिस्टर्ब करने का। ऐसा जो थॉट था, कुछ नेता ने सोचा, कुछ हमारे लीडर्स ने सोचा, कुछ हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स ने सोचा, और उस मेंबर्स के नाम थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ऐसे नाम थे। इन 1922 द स्वराज पार्टी वॉज established। 1922 में स्वराज established हो गई। 1923 में मेनी मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी वर इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। स्वराज पार्टी के बहुत सारे मेंबर जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन होता है उसमें चुने गए। एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो, मतलब जो राष्ट्रीय होते हैं उसको सेंट्रल बोलते हैं, केंद्रीय बोलते हैं, केंद्र सरकार। और प्रोविंशियल जो बोलते हैं तो अभी कैसा है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब उद्धव ठाकरे जी जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, ऐसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा हम बोल सकते हैं। मेनली इंक्लूडिंग दैट मोतीलाल नेहरू, यू कैन सी दैट नेम्स गिवन हियर, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एएनसी केलकर। देन द पॉलिटिकल मूवमेंट इन द कंट्री काम डाउन। जब ये पॉलिटिकल जो मूवमेंट है, पॉलिटिकल जो आंदोलन है, वो जब कुछ काम हो गया, मतलब कुछ डाउन हो गया, देन द फाइट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज स्ट्रेंथन्ड बाय स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी इधर पावरफुल काम कर रही थी। दे सेवियरली अपोज दैट अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। वो क्यों गए थे उधर मेंबर बनकर, उस पार्टी के लीडर? क्योंकि उनको बताना था ब्रिटिश लोगों ने जो कुछ पॉलिसी लाई है वो कैसी अनजस्ट है, अन्यायकारक है, और ये अन्यायकारक पॉलिसी हमें नहीं चाहिए। अन्यायकारक पॉलिसी हमारे भारतीय लोगों को नहीं चाहिए। They demanded that responsible government should be given in India in future। आने वाले भविष्य के काल में हमारे भारत देश के लिए जो सरकार आएगा वो रिस्पॉन्सिबल ही आएगा, ऐसा उनका प्रयास था, और इसलिए वो मांग कर रहे थे। दे मेड रिजोल्यूशन, उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी किया, तो पास इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि उनको पास करने का था विधानसभा में, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम द प्रिजन। मतलब हमारे जो नेता लोग हैं, आपको आपने प्रिजन में रखे, आपने जेल में रखे, उन लोगों को रिलीफ देना जरूरी है, और ये रिलीफ देने का हम आपका काम है, और वो आपको करना ही चाहिए। टू कॉल फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द गवर्नमेंट रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द रिजोल्यूशंस। मतलब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को भी बुलाओ, ऐसी मीटिंग एक लगाओ, ऐसा भी बोला था। मगर बहुत सारे रिजोल्यूशंस गवर्नमेंट ने क्या किए, रिजेक्ट किए। जो बहुत सारे रिजोल्यूशन थे, जो बहुत सारे ऐसे डिक्लेरेशन थे, उनकी मांग थी, वो बहुत सारी मांग पूरी नहीं हो गई। तो हम ऐसा इधर देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। जब ये ऐसी मांगे हो गई थी, मगर ब्रिटिश लोगों ने उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया था भारतीय लोगों को, तो क्या हो गया, साइमन कमीशन नाम का एक अलग कमीशन आया था। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919 वेर अनसेटिस्फैक्टरी। बहुत सारे एक्ट हो रहे थे, बहुत सारे कायदे कानून हो रहे थे, मतलब मगर वो कायदे कानून सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, अनसेटिस्फैक्टरी था। ये भी हो गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था, मतलब वो कायदा हमारे लिए अच्छा सा नहीं था। हेंस देयर वाज डिसकंटेंट अमंग द, इसके कारण ही, इसके वजह से हमारे लोग त्रस्त हो रहे थे, हमारे लोग त्रस्त हो रहे थे। ऑन दिस बैकग्राउंड द ब्रिटिश अपॉइंटेड देयर कमीशन अंडर दैट चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, एक कमेटी स्थापित की, और समिति का नाम, जो लीडर का नाम होता है वो नाम ही देते हैं, साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन इज द नेम ऑफ दैट लीडर। इन दिस कमीशन नन ऑफ द इंडियन मेंबर, एंड मेन थिंग इज दैट स्टूडेंट, ब्रिटिश लोग ऐसा करते थे तो हमारे भारतीय लोग जरूर मतलब एंग्री हो जाएंगे ना। क्या किया उन्होंने, इस पर्टिकुलर मतलब जो कमीशन था ना, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, none of the Indian member included। Hence the Congress decided to boycott this commission। Why to accept this commission? तो हमें कमीशन ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे कमीशन। तो क्या हो गया, 1928 में, 1928 साली द कमिशन अराइव्ड इन इंडिया। कमिशन आपल्या इंडियामध्ये, भारत देशामध्ये आलं। कमिशन ने एंटर किया इधर, इस पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब जो कमीशन बनाया था, जो एक कमीशन बनाया था, वो कमीशन ने एंट्री किधर की, हमारे इंडिया में।
wherever it traveled, the people made demonstrations against them. Demonstration मतलब प्रयोग by you can see here. So that is the particular commission. 1 minute. That is means that particular मराठी में भी आप अगर आंदोलन हिंदी में भी हम आंदोलन कर सकते हैं। इस आंदोलन में क्या लिखा था कि शाउटिंग दे गई, घोषणाएं देना चालू किया, स्लोगन्स चालू हो गए। शाउटिंग द स्लोगन्स लाइक साइमन गो बैक, साइमन यू हैव टू गो बैक मीन्स वेयर टू गो बैक इन इंग्लैंड। देर वॉज लाठी चार्ज, देर वॉज लाठी चार्ज ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटर मतलब इधर आंदोलक हम बोलेंगे, जो आंदोलक लोग होते हैं जो आंदोलन करते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटर बोलेंगे। उन पर लाठीचार्ज लगा दिया, लाठी ने मारा पीटा ब्रिटिश लोगों ने एट लाहौर लाला लाजपत राय। और इस पर्टिकुलर लाठीचार्ज में क्या हुआ मालूम है आपको? लाहौर में एक इंसिडेंट मतलब हो गया था। वो जो इंसिडेंट था बहुत मतलब समय घटना थी हमारे लाला लाजपत राय के लिए, क्योंकि उन्हें उनकी जान गई इस लाठीचार्ज में। लाला लाजपत राय और लीडिंग टू डेमोन्स्ट्रेशन मतलब वो लीडरशिप कर रहे थे इस डेमोन्स्ट्रेशन का, इस आंदोलन का अगेंस्ट द साइमन कमीशन। द पुलिस लाठी चार्ज दैट डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड सॉन्डर्स, please don't remember this name, that officer name, which police officer attacked that Lalaji with lathi. Sonder is the name of that officer. He attacked on our Lala Lajpat Rai with lathi. After the attack in protest meeting that is the opposing meeting, oppose करना, कुछ opposing बोलना। इस oppose meeting में वो क्या बोले, लाला जी क्या बोले? Every blow on my body will prove a nail in the coffin of the British Empire. Means see what is the meaning of this sentence? Every blow on my body means आप हमें आप मुझे मार रहे हैं अभी, मगर जो आप मार रहे हैं मुझे एक एक मतलब जो मुझ पर घाव हो रहा है ना, वो जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्या क्या प्रूव हो जाएगा? नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश एम्पायर का जो कफन है उस कफन पर का एक एक नेल, नेल का मतलब जो होता है, नेल आपण मराठीमध्ये खिळा असं म्हणतो, जो दैट इज अ पॉइंटेड थिंग। मतलब मतलब क्या, आप जो एक घाव मुझे दे रहे हैं वो एक नेल आपके कफन का है, आपके वो जो शवपेटी होती है वो शवपेटी का है ब्रिटिश लोगों के। विद इन फ्यू डेज मीन्स आफ्टर दिस अटैक you can see that attack because of this attack after within few days of the attack Lalaji died. Lala Lajpat Rai passed away here. So here we can see our leaders died here, our leader died here, name is Lala Lajpat Rai. After this Nehru report is the point. Here you can see Birkenhead, he was the secretary of this India's means state of India, and that is a country is calling it state only. He decided that the Indian leaders cannot drop unanimously. Unanimously means with one opinion, with one opinion। मतलब वो उसने क्या कहा कि इंडियन जो लोग हैं, इंडियन जो लीडर्स है, भारतीय जो कुछ लीडर्स है ना, नेता है ना, उन नेताओं को एक ऐसा कहना है ब्रिटिशों का कि आप कुछ भी ड्राफ्ट नहीं कर सकते, आप कुछ भी मतलब बना नहीं मत बनाओ। एंड unanimously accepted constitution. This challenge was accepted and all party committee was formed. Pandit Motilal Nehru was the chairman of this committee. क्या हो गया? बर्केन हेड जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्रिटिक किया कि इंडियन लीडर्स कुछ बना नहीं सकते, मतलब वो उनके बनाने की ऐसी पात्रता नहीं है। जो संविधान बनाते थे ना, वो संविधान बनाने का
तो एक चैलेंज एक्सेप्ट किया हमारे लोगों ने। और आपको मालूम है हमारे अम्बेडकर जी ने क्या किया, संविधान लिखा। मतलब नियरली 300 मेंबर्स थे उस कमेटी में, 299 मेंबर्स वर देयर लास्ट ईयर इन सिविक सब्जेक्ट 7 स्टैंडर्ड। मगर गांधी जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। To establish self-government in the colonies of India, implement adult franchise system, linguistic division of provinces. Such proposals were put up in this report, and this report was known as Nehru Report. So, what is the meaning of Nehru Report? Meaning of Nehru Report that self-government मतलब खुद का सरकार स्थापित करने का हमारे इंडिया में। अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम इन शॉर्ट, अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम में दैट इज वोटिंग राइट हमारे लोगों को मिलना चाहिए। लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस, मतलब जो लैंग्वेज में कुछ प्रोविंस वाइज हमें क्या करना चाहिए, ऐसा डिवीजन करना चाहिए। इस ये सब जो बातें थी इस रिपोर्ट में थी। इस रिपोर्ट को हम क्या कह सकते हैं, नेहरू रिपोर्ट ऐसा कह सकते हैं। Students, remaining point, that is the only one point, demand for Purna Swaraj, that I will take up.
We will take afterwards. If you are able to listen me now, complete your work, that is the notes work. Write notes regarding with this lesson, how many topics, means subtopics we learned here in this non-cooperation movement lesson number 7. So next period we will take this point, and with this point we will start next chapter also, maybe civic or history. Okay. 1 minute, I think. Okay, then it's okay. Okay, same to you all.